کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیے ہیں کہ میں نبی ہوں، اس سے پہلے ہی لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے۔ دو لقب آپ کو مل چکا تھا۔ تو جب صادق اور امین کا لقب مل چکا، اللہ کے رسول سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ سچ بولنے والا جب کوئی نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے جو تھے غار حرا میں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ عبادت کا دستور اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینے کا یا ایک ہفتے کا کھانا اپنے ساتھ باندھ لیتے اور وہیں ایک مہینے تک اس غار میں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر جب وہ کھانا ختم ہو جاتا اور جتنے دن رہنا ہوتا وہاں رہ لیتے، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے۔ تو یہ سلسلہ جب چلتا رہا تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر کے آئے اللہ کے رسول کے پاس، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی، اور آ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا محمد اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اللہ کے رسول جب یہ سنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ہم پڑھنے نہیں جانتے۔ انہوں نے پھر اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے پڑھیے۔ 3 بار جب ایسا ہوا پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم پڑھنے نہیں جانتے، تو روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو سینے سے لگائے، سینے سے لگانے کے بعد کس کے پکڑ لیے، اس کے بعد پھر بولے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تب اللہ کے رسول پھر پڑھنے لگے۔ تو جب 40 سال کی عمر، جب اب یہ پہلا حادثہ ایسا ہوا ہے غار حرا میں کہ کوئی آواز آئی، کوئی آ کر کے ہم کو پڑھا رہا ہے، تو اللہ کے رسول کوئی ایک عجب کیفیت طاری ہوتی ہے نا، اچانک ہمیں کوئی آواز آئے، اچانک کوئی آ کر کے ایسا کلام بولے جس کو ہم نے کبھی سنا ہی نہ ہو، تو انسان ڈر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول تھوڑا سا ڈر محسوس کرنے لگے۔ گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ آپ کی شادی ہو چکی تھی، ان کو پورا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ جب گھر آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر پہناؤ، بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے چادر پہنایا اللہ کے رسول کو۔ چادر پہنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ۔ تو اب دیکھیے بیوی کا کام کیا ہوتا ہے؟ تسلی دینا۔ انسان باہر سے تھکا مارا آئے باہر سے، تو بیوی کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سکون پہنچائے، تسکین پہنچائے۔ اللہ کے رسول نے جب حضرت خدیجہ سے پورا ماجرا بیان کیا تو حضرت خدیجہ یہ نہیں کہتی ہے کہ نہیں کچھ ہو سکتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حضرت خدیجہ تسلی دیتی ہے کہ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ اللہ ہمیشہ اچھائی کا معاملہ کرے گا، کیونکہ آپ کے اخلاق اتنے نرالے ہیں کہ اس وقت کوئی آپ سے زیادہ اچھا انسان کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ ایسے انسان ہیں کہ آپ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا سہارا بنتے ہیں۔ آپ ایسے انسان ہیں کہ جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کماتے ہیں۔ آپ ایسے انسان ہیں جو مہمانوں کی جو ہے قدر کرتے ہیں، مہمانوں کو نوازتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مہمانوں کی عزت کرنا سنت رسول ہے۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہے اللہ آپ کو کبھی نہیں رسوا کرے گا، آپ لوگوں کے دکھوں کو بانٹتے ہیں، آپ لوگوں کے درمیان سکون پہنچاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں سکون پہنچاتے ہیں، لوگوں کے درمیان تسلی پھیلاتے ہیں، ایک محبت کی دعوت دیتے ہیں، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آپ کماتے ہیں۔ گویا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ جب یہ تسلی دیتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو تسلی دیتی ہے، تو پھر حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو لے کر کے اس وقت ایک بہت بڑے نصرانی عالم کے پاس لے کے جاتے ہیں جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ ان کے پاس جاتے ہیں دونوں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ، اور پورا واقعہ ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو وہ جو تھے وہ بہت بڑے نصرانی عالم تھے، انہوں نے تو پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو انہوں نے کہا، تسلی دی حضرت خدیجہ کو۔ جب انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ آخری نبی کی یہ نشانی ہے، یہی آخری نبی ہیں، تو حضرت خدیجہ کو اور یقین ہو گیا کہ میرے شوہر سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اور یقین ہو گیا اللہ کے رسول پہ۔ اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل آخر میں اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی،
उस वक्त वो कह रहा है, वो कह रहे थे कि आपको आपकी कौम आपकी बायकाट कर देगी, आपको निकाल देगी। तो अल्लाह के रसूल बोलने लगे मुझको? बोले हाँ आपको निकालेगा। और वो वर्का बिन नौफल कहते काश मैं उस वक्त होता आपके साथ, आपकी मदद करता, लेकिन उम्र रफाकत करे या ना करे ये मुझे पता नहीं, लेकिन काश अगर मैं उस वक्त होता तो आपकी मदद करता, आपको आपकी कौम निकालेगी। और ऐसा ही हुआ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद एक अल्लाह की तरफ, नबूवत से पहले की हालत क्या थी? लोग दरख्तों के पास जाकर के झुकते थे, पत्थरों के पास जाकर के अपनी नजर न्याज पेश करते थे, पत्थरों के पास जाकर के सजदा रेज होते थे कि यही मेरा अल्लाह है, यही माबूद है, यही मुझे अता करता है। और उस इंसान के पास जाकर के झुकता था जो ना तो किसी को नफ़ा पहुंचा सकता है ना नुकसान, उसको अपना वो अल्लाह का बहुत बड़ा शफी समझता था कि ये हमारे अल्लाह के पास सिफारिश करेगा, ये करेगा, वो करेगा, अल्लाह हमको बहुत ज़्यादा फिर नवाजेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं। जब उन तमाम चीज़ों से अल्लाह के रसूल ने एक अलग दावत दिया कि आओ, ये जो तुम दरख्तों की पूजा करते हो, जो सूरज की इबादत करते हो, जो पत्थरों के सामने सर टेकते हो, ये तुम्हारा रब नहीं है। तुम्हारा रब वो रब है ला ताखुज़ू सीनतुम वला नौम, कि वो रब तुम्हारा रब है जिसको ना नींद आती है ना ओंग आती है, इसको ओंग नहीं आती, ना सोता है, कभी नहीं सोता। वो तुम्हारा रब ऐसा रब है, तुम्हारा रब एक है, ना उसको किसी ने पैदा किया ना उससे कोई पैदा हो सकता है। आओ उस रब की तरफ, उसकी इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो। ये करोड़ों माबूद जो तुम बना रखे हो, करोड़ों खुदाओं को बना रखे हो, इसको हटाओ, ये तुम्हारा खुदा नहीं है, ये ना तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, ये तो खुद तुम्हारा मोहताज है, तुम इसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाते हो, इसकी हिफाजत तुम करते हो, ये तुम्हारी हिफाजत कहाँ से करेगा? जब ये दावत दी अल्लाह के रसूल ने, एक अल्लाह की दावत दी, एक माबूद की दावत दी, तो लोगों को अजब लगा, ये हमारे बाप दादा पूछ के आए हैं ऐसे, और ये एक मोहम्मद आकर के कह रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकता है, इसको तुमने अपने हाथों से बनाया है। तो अब एक अचंभा चीज़ लगी ना। तो जब हुआ ऐसा कि अब लोगों में फैलाने लगे कि मोहम्मद एक अलग दीन की दावत दे रहा है, इतना फिर जब ये फैल गया पूरे मक्का में, तो अल्लाह के रसूल के साथ जुल्म ज़्यादती का जो है यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। इतना जुल्म किया गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि अब हिजरत करो यहाँ से, यहाँ मक्का छोड़ो अब लोगों को, मुसलमानों को। तो कई मुसलमानों ने जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ने लगा, कुफार और मुशरिकीन ने इतना जुल्म किया कि जो भी कलमा पढ़ता था उसको डायरेक्ट ख़त्म कर देता था, उसको बहुत ज़्यादा अजियतें पहुँचाता था, रेतों पर उसको पकड़ के घसीटता था, उसके चमड़े को छीलता था कि मोहम्मद पे ईमान ना लाओ। लेकिन उस वक्त का मुसलमान भी बड़ा पक्का मुसलमान होता था, कहते थे तुम मुझे मारो काटो जो भी करना है करो, लेकिन हम मोहम्मद के रब पर ईमान ला के रहेंगे, हमारी जान से ज़्यादा अहमियत हमारा ईमान है। और आज हमारी हालत ये चुकी है कि हमारी जान ज़्यादा अहमियत रखती है हमारे ईमान से। हम अपने आप को बचाने के लिए इस्लाम को पीछे छोड़ देते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए ईमान का परवाह नहीं करते हैं कि हमारा ईमान कहाँ से कहाँ तक चला गया है। लेकिन उस ज़माने में वो भी क्या ईमान लाने वाले थे। तो जब उन्होंने अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोगों पर बहुत जुल्म हो रहा है, हिजरत करो, तो पहली हिजरत जो ऐलान नबूवत के बाद हुई वो हबशा की हिजरत की। कई मुसलमानों ने रसूलुल्लाह से हुक्म पाकर हिजरत की हबशा की तरफ, फिर बाद में कई मुसलमानों ने और हिजरत की। जब हिजरत का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ, इस्लाम में पहली हिजरत हबशा है। फिर जब ये कुफार को यकीन हो गया कि हम मोहम्मद को रोकने नहीं पाएंगे, तो अब जो वर्का बिन नौफल ने कहा था कि आपको आपकी कौम निकाल देगी, तो वही हालत फिर आ चुकी कि अल्लाह के रसूल का तमाम लोगों ने बनु हाशिम का बायकाट किया कि इनको ना खिलाओ ना इनके साथ कोई ताल्लुक़ रखो, इनको हटा दो अपने। हम लोग इसमें क्या कहते हैं, बायकाट ही कहते हैं या कुछ कहते हैं अपने पास, बायकाट कर देना यानी मुआशरे से उसको अलग कर देना। तो बनी हाशिम को उन लोगों ने अलग कर दिया, ना उनको खाना ना कोई ताल्लुक़ नहीं, अजनबी की तरह रहने लगे। और इतना स्थिति ख़राब कर दिया कि अल्लाह की रिवायतों में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के जुल्म को बर्दाश्त करने के बाद शेब अबी तालिब यानी एक मक्का के करीब एक घाटी है, उस घाटी में 3 साल गुजारे, और इतनी मुशक्क़त के साथ 3 साल गुजारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु हाशिम के खाने को खाना नहीं होता था, पीने को पानी नहीं होता।
जब खाना नहीं मिलता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों के जड़ों को चबाते थे, पूरी बनु हाशिम। आज तो हमें खाना मुयस्सर है, आज जो हम चाहे वो खरीद के खा सकते हैं, लेकिन हमारे नबी ने जो हम तक दीन पहुंचाया वो इस हालत में पहुंचाया कि खाने को कुछ नहीं मिलता था। एक घाटी में रहना, पूरे कौम से अलग होकर रहना, पीने के लिए पानी नहीं होता था, जब खाना नहीं होता तो दरख्त के जड़ों को चबाते थे, या फिर ये होता था कि खजूर के तने या चमड़े को अपने पेट पर बांध लेते थे। इस हालत में जो है अल्लाह के रसूल ने दीन को फैलाया। और जब ऐलान नबूवत का 10 साल हुआ तो 10 साल में जब हमारे नबी 6 साल के हैं तो वालदा का इंतकाल होता है, जब 2 साल के पेट, जब 8 साल के होते तो जो दादा जितने आपको चाहने वाले थे, बहुत ज़्यादा चाहने वाले, उस दादा का हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल होता है। और जब ऐलान नबूवत का 10वां साल होता है तो जो आपको सपोर्ट करते थे, जो अपनी औलाद से ज़्यादा आपकी हिफाजत करते थे, हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है, आपके चाचा का। फिर उनके इंतकाल होने के कई दिन बाद हज़रत खदीजा का इंतकाल हो जाता है। जिस बीवी ने आपकी रहनुमाई की, आपको सपोर्ट किया, हर मामले में आपको सपोर्ट किया, उस बीवी का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के रसूल को बहुत सदमा होता है। अभी इतना तो रहे, इतना जुल्म बर्दाश्त किया, शेब अबू तालिब में रहे, वो थोड़ा इफाका हुआ तो चाचा भी चले जाते हैं, बीवी भी चली जाती है। इतना हुजूर को सदमा होता है कि उस साल का नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल हुज़्न रखते हैं, यानी गमों का साल रख देते हैं। अब सोचिए, जो इंसान हर हाल में, हर सुख दुख में हमको सपोर्ट करे, वो इंसान चला जाए तो हमको कितनी तकलीफ होगी। इसा अल्लाह के रसूल को बहुत सदमा पहुंचा इन दोनों के जाने से, और उस साल का नाम रखते हैं आमुल हुज़्न। फिर होता है कि मेराज, जिसको हम मेराज कहते हैं, मेराज का वाक़या आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तसर से वक्त में, बहुत कम वक्त में अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, और मस्जिद अक़सा से फिर सातों आसमान से सिदरतुल मुंतहा का सफ़र कराते हैं। इसी सफ़र का नाम मेराज है। और इस सफ़र से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफ़ा लेके आए थे, वही नमाज है, जिसको आज हम लोग अदा करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दिया, और ये सोचे कि हम तक दीन किस किस तरह पहुँचा है। वो नबी जो अल्लाह से एक बार दुआ कर लेते तो उहद पहाड़ को सोने का बना दिया जाता, लेकिन कितना जुल्म सहे कुफार और मुशरिकीन से, सहे कि नहीं? कितने अपने अहलो अयाल को कुर्बान किया, खाने तक को खाना नहीं होता था वो भी बर्दाश्त किया। किसके लिए? ये नहीं कि हमको बादशाही मिलेगी, ये नहीं कि हम बाद में जाकर के ये करेंगे वो करेंगे, इस वजह से ताकि लोगों को हिदायत दें कि ये जिस जिसके सामने सर टेकते हो, ये तुमको कोई नफ़ा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नफ़ा और नुकसान वही पहुंचा सकता है जिसने तुमको पैदा किया, और तुमको पैदा करने वाला ये पत्थर, ये दरख्त, ये सूरज, ये पानी, ये सब नहीं है, एक अल्लाह है। न तो उस अल्लाह को किसी ने पैदा किया, ना उससे कोई पैदा हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।